समाधि निकटକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। क्यों आप जानते हैं? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି क्योंकि କି? वो यीशु से प्यार करने वाली स्त्रियां हैं, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, यीशु का आदर सम्मान करने वाली स्त्रियां ଯୀଶୁ हैं। ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ लेकिन ଲୋକମାନେ। यीशु पर विश्वास कैसे करें ये उन्होंने जाना नहीं था। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। आज बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या ये नहीं जानते। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। यीशु से प्यार करना मतलब यीशु पर विश्वास करना नहीं होता। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ନାହିଁ। यीशु का आदर और सम्मान करना मतलब यीशु पर विश्वास करना नहीं होता। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। तो फिर यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या है? ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାନେ କଣ? यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ଆଉ ଯୋହନ ଏକ ପର୍ବର ଏକ ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। और 14 में लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ। ଆଉ 14 ପଦ ଏପରି କୁହେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲା। तो यीशु वचन है। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। तो यीशु पर विश्वास करना मतलब वचन पर विश्वास करना ଯୀଶୁ है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। लेकिन मैं वचन पर विश्वास नहीं करके केवल यीशु से प्यार करता हूं तो फिर वो यीशु पर विश्वास करना नहीं होता। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। बाइबल में मार्था और मरिया की भी कहानी लिखी गई है। ବାଇବଲରେ ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। इन दो बहनों का भाई लाजर एक दिन बीमार हुआ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାର ସେମାନେ ସେଇ ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। लेकिन यीशु मसीह के पास जब उन्होंने संदेश भेजा, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପଠେଇଲେ, यीशु ने वचन को भेजा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ସମୟରେ ନିଜର ବାକ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ଏ ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, परमेश्वर की महिमा के लिए है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। यीशु का वचन बहुत स्पष्ट था। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। जैसे आज की बारिश ये घंटाटा बंद करने के लिए नहीं थी, ଯେମିତି ଆଜିର ବର୍ଷା କେବଳ କାଣ୍ଟାଟା ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା, बल्कि परमेश्वर की महिमा हमें देखने के लिए थी। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। लेकिन जब हम परिस्थिति को देखते हैं, हम परिस्थिति पर विश्वास कर लेते हैं। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। मार्था और मरियम ने भी वैसा ही किया। ମାର୍ଥା ମରିୟମ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। हालांकि यीशु का वचन था, ଯଦି ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, लेकिन परिस्थिति में लाजर जब मर गया, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଲାଜାର ମରିଗଲେ, उनके सामने दो चीजें थी। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଦିଟା ବିଷୟ ଥିଲା। एक है यीशु ने कहा वो वचन, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଥିଲା, और दूसरा था उनकी परिस्थिति जिसमें लाजर मर गया है। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲାଜାର ଯିଏକି ମରି ଯାଇଥିଲେ। स्वाभाविक विचार पर विश्वास करना मतलब परिस्थिति पर विश्वास करना होता है। ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। सत्य पर विश्वास करना मतलब वचन पर विश्वास करना होता ସତ୍ୟକୁ है। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। तो मार्था और मरियम का भाई जब मर गया, ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ये दोनों चीजों को वो एक साथ विश्वास नहीं कर सकते थे। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। अगर परिस्थिति पर विश्वास करते हैं तो उनको यीशु का वचन इनकार करना है। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। अगर वचन विश्वास करेंगे तो परिस्थिति को इनकार करेंगे। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। अगर परिस्थिति पर विश्वास करना है तो वचन को फेंक देंगे। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ। उन्होंने क्या किया? ସେମାନେ କଣ କଲେ? उन्होंने वचन को फेंक दिया ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। और उन्होंने लाजर को जाके कब्र में रख दिया ସେଥିପାଇଁ ଲାଜାରକୁ ସେମାନେ ସମାଧି ଭିତରେ ରଖିଲେ। और वो लोग रोने लगे, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, विलाप करने लगे। ବିଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ जब କଲେ। यीशु भी आया, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, उससे मार्था ने भी कहा कि यीशु अभी लाजर को मर के 4 दिन हो गए, अभी दुर्गंध भी आती होगी। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାର୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜାର ମରିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ, सब दुर्गंध होतुब। उन्होंने यीशु का वचन जिसपे कहा है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए है, उस पर विश्वास करने के बजाय अपनी परिस्थिति पर विश्वास करना चुना। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଛିଲେ। वैसे ही इन 3 स्त्रियों के साथ भी हुआ। ଆଉ ସେହିପରି ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ। उन्होंने परिस्थिति और सोच पर विश्वास किया, यीशु के वचन को भूल गए थे। ଆଉ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଗଲେ। जब भी हम वचन पर नहीं परिस्थिति पर विश्वास करते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, हम डरते हैं, ଆମେ ଡରୁଛୁ, हम लोग भयभीत होते हैं ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅଟୁ, और हम लोग चिंता में गिर जाते हैं, ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଉ, निराशा में गिर जाते हैं। ହତାଶରେ ପଡିଯାଉ। आज शाम को भी ऐसा ही हो रहा था। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ हम लोग ଘଟୁଥିଲା। डर रहे थे, ଆମେ ଡରୁଥିଲୁ, हम लोग चिंता कर रहे ଆମେ थे। ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲୁ। क्यों?
करें। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ अभी କରୁ। परमेश्वर ने हमको इन 3 स्त्रियों के समान वचन की ओर फिरने लगाया। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବନେଇଲେ। जब ये 3 स्त्रियां कब्र के पास पहुंची ଯେତେବେଳେ ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ସମାଧି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, तो उस समय में यीशु वहां पर नहीं था। ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିଲେ। क्यों? କାହିଁକି? क्योंकि यीशु जी उठा था। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। उन्होंने जो सुगंधित द्रव्य तैयार किया था वो व्यर्थ हो गया। ସେମାନେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଗନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। जो परिश्रम करते हुए वो लोग चलते चलते कब्र तक गए, वो उनका परिश्रम भी व्यर्थ हो गया। ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଯୋଉ ସମାଧିକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବେକାର ହେଇଗଲା। क्यों? କାହିଁକି? क्योंकि उन्होंने यीशु के वचन पर विश्वास नहीं किया। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ लेकिन इन କରିନଥିଲେ। 3 स्त्रियों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है, କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। इसलिए उनके लिए परमेश्वर ने वहां स्वर्गदूत को रखा था। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତକୁ ରଖିଥିଲେ। जब वो वहां पर पहुंचे वो लोग स्वर्गदूत से मिले। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ଭେଟିଲେ। स्वर्गदूत ने इनसे क्या कहा? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? तुम क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को ढूंढती हो, ତୁମେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଥିବା ଯୀଶୁକୁ ଖୋଜୁଅଛ, वो यहाँ नहीं है, ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। वो जी उठा है। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ और ହୋଇଅଛନ୍ତି। जैसे उसने तुमसे कहा था, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ତୁମକୁ କହିଥିଲେ वो तुमसे पहले गलील को गया है। ସେ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଗାଲିଲିକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात स्वर्गदूत ने कही। ଏଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ। वो क्या है? ସେଟା କଣ? जैसे उसने तुमसे कहा था। ସେ ଯେମିତି ତୁମକୁ କହିଥିଲେ। जिस यीशु ने उनसे पहले ही कहा था। କାରଣ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଥିଲେ। फिर यीशु ने मार्था और मरियम को भी वचन कहा था। ଆଉ ମାର୍ଥା ମରିୟମକୁ ବି ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ସାରିଥିଲେ। हमें भी परमेश्वर ने वचन कहा है। ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। हमने वचन को सुना है, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛୁ हम ମଧ୍ୟ। वचन जानते हैं। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛୁ ବି। वचन को जानना और वचन पर विश्वास करना अलग होता है। ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏଟା ପୁରା ଭିନ୍ନ। इन स्त्रियों ने भी वचन को जाना था, ଆଉ ଏ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ, वचन पर विश्वास नहीं किया था। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। वचन पर विश्वास कैसे किया जाता है? ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରାଯାଏ? सोच विचार को इनकार करके, परिस्थिति क्या कहते हैं वो इनकार करके ही वचन पर विश्वास किया जा सकता है। ଚିନ୍ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକି ହିଁ କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। तो जब इन 3 स्त्रियों ने स्वर्गदूत की वाणी को सुना, ଯେତେବେଳେ ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, उन्होंने जाना, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ हाँ हम लोग धोखा खाए, ଓ ଆମେ ଧୋକା ଖାଇଛୁ। हाँ हम लोग हमारे सोच पर भरोसा करके इस समाधि के पास कब्र तक पहुंच ଓ गए। ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସମାଧି ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। अगर वचन पर विश्वास करते तो गलील को जाते। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆମେ ଗାଲିଲିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। अभी क्यों ना हो, चलो चलो गलील की ओर जाएंगे। ଓ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଚାଲ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବା। क्या आप समझ पा रहे हैं? ଆପଣ तो ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି उस କି? समय में ये 3 स्त्रियां, उस समय में ये 3 स्त्रियां ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ कब्र से गलील की ओर जाने के लिए निकली। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧିରୁ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये इजराइल का नक्शा है। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ନକ୍ସା। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये गलील है, ଆଉ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗାଲିଲି। और यहाँ पर यीशु की कब्र है। ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ସମାଧି। यहाँ जाने का मार्ग पूरा उल्टा है। ଆଉ ଏଇଠିକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ହଉଛି ପୁରା ବିପରୀତ। जो गलील को जाएगा वो कब्र के पास नहीं जा सकता। ଆଉ ଯିଏ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବେ ସେ ସମାଧିକୁ ଯାଇପାରିବେନି। जो कब्र के पास जाएगा वो गलील को नहीं जा सकता। ଯିଏ ସମାଧିକୁ ଯିବେ ସେ ଗାଲିଲିକୁ ଯାଇପାରିବେନି। जो सोच के पीछे जाता है वो वचन का पीछा नहीं करता। ଯିଏ ଚିନ୍ତାର ପଛରେ ଯିବ ସେ ବାକ୍ୟର ପଛରେ ଯାଇପାରିବନି। जो वचन के पीछे जाता है वो अपने सोच के पीछे नहीं चलता। ଯିଏ ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଯିବ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପଛରେ ଯାଇପାରିବ। अगर आज मुझे वचन की ओर जाना है ଯଦି ଆଜି ମତେ ବାକ୍ୟର ଆଡକୁ ଯିବାର तो ଅଛି मुझे क्या दिखता है, ତ ମତେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, मुझे क्या लगता है, ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି, मैं कैसे सोचता ମୁଁ हूँ, କେମିତି ଭାବୁଛି उसको इनकार करना ତାକୁ है। ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। वचन क्या कहता है उसको जैसे कि वैसे विश्वास करना। ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ତାକୁ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। जब ये 3 स्त्रियां अपने सोच से फिर कर वचन की ओर गई, ଯେତେବେଳେ ଏ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଗଲେ, जब वो कब्र से गलील की ओर जाने लगी, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ସମାଧିରୁ ଗାଲିଲି ଆଡକୁ ଗଲେ, अभी उनके चेहरे की ओर अगर आप देखोगे तो वो लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛି। क्यों वो लोग अभी खुश हैं? କାହିଁକି ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? क्योंकि वो लोग अभी अपने सोच के पीछे नहीं जा रहे हैं। କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପଛରେ वो ଯାଉନାହାନ୍ତି। लोग वचन को स्मरण करके, वचन पर विश्वास करके वो लोग जा रहे हैं। ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ आप ଯାଉଛନ୍ତି। जानिए अभी तक उन्होंने यीशु को
विश्वास आगु को वो बढ़ुचंती वचन पर विश्वास करके अभी गलील की ओर जा रहे हैं। वर्तमान से वाक्यों को विश्वास करके गालीली आड़ को जाउचंती आज बहुत सारे लोग यीशु की मृत्यु को जानते हैं, आज भी अनेक लोक माने यीशु ख्रीष्ट को मृत्यु को जानिचंती यीशु का पुनरुत्थान भी जानते हैं, यीशु ख्रीष्ट को पुनरुत्थान को भी लेकिन जानिचंती उसका अर्थ नहीं जानते। किंतु तार अर्थ को जानि ना यीशु का मृत्यु क्यों दिया गया यीशु ख्रीष्ट काहे की मरा गले और यीशु क्यों पुनरुत्थित हुआ, और यीशु ख्रीष्ट काहे की पुनरुत्थित हेले वो बताने के लिए बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन है। और ए विषय को जणेवा पई बाइबल रे गोटे मूल्यवान वाक्य आज का ईस्टर कंटेंट भी उस वचन पर आधारित है। आज जो ईस्टर कैलेंडर से वाक्य ऊपर आधारित उस वचन को देख के हम खत्म करेंगे। से वाक्य को देखि कि हमें समाप्त करबा अगर हम रोमियो के 4 अध्याय के 25 वचन को पढ़ते हैं, यदि हमें रोमियो 4 पर्वर 25 पद को देखिबा वहां पर लिखा है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और यीशु ख्रीष्ट हमरो अपराध निमंते समर्पित हेले और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हमें माने धार्मिक गणित हेबा निमंते उत्थापित हेले। तो यहाँ पर लिखा है यीशु का मृत्यु हमारे अपराधों का पापों का दंड चुकाने के लिए दिया गया। और एट वाक्य कहूची जे यीशु ख्रीष्टकर मृत्यु होची हमर दंड हमर जो अपराध रो दंड निमंते। आज शाम को स्टेज के ऊपर आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए आप वास्तविकता में देख पाओगे। आज आपण माने एठी यीशु ख्रीष्ट को क्रूस रे हत हवार वास्तव देखि पारिबे। लेकिन सिर्फ यीशु को क्रूस पर चढ़ते हुए देखकर आपको दुखी होना है उतना ही काफी नहीं है। और केवल यीशु ख्रीष्ट को क्रूस रे हत होतबा देखि कि आपण दुखी हेबार आवश्यक नाही, उतना ही काफी नहीं है। सेति यथेष्ट नुहे। आपको जानना है कि यीशु का मृत्यु मेरे पाप और अपराधों का दंड चुकाने के लिए दिया गया। आपण मानू जानिबा बहुत जरूरी जे यीशु ख्रीष्ट को ए जो मृत्यु हमर पाप अपराध रो दंड वेतन देबा निमंते। हम आदम के द्वारा पाप में जन्मे थे, हमने समस्ते आदम द्वारा पाप रे जन्मी थिलु, इसलिए मरने के बाद हम पापी होने की वजह से नरक में ही गिरने वाले थे। हमें मरिथिबा सकाश हमें से मरला परे नरक को ही जिबार थिला। पापी मनुष्य कभी स्वर्ग में नहीं जा पापी सकता। मनुष्य केबे स्वर्ग को जाई पारिबोनी। स्वर्ग में जाने के लिए पापी को धर्मी ठहरना पड़ता है। सेही स्वर्ग को जिबा पई हेले जने पापी को धार्मिक होबा को आवश्यक। लेकिन आज लोग बाइबल पर विश्वास करने के बजाय किंतु वर्तमान लोक माने वाक्य को विश्वास करिया परिवर्ते वो लोग अपने सोच पर भरोसा करते हैं। लोक माने निजर चिंता को विश्वास इसलिए करछन। लोग सोचते हैं कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं पापी से धर्मी बन सकूंगा। सेही लोक माने भाबुचते मु जदी चेष्टा करिबे ताहेले मु पापी रु धार्मिक हेबी। मनुष्य में से कोई भी कोशिश करके पापी से धर्मी नहीं बन सकता। केही भी चेष्टा द्वारा पापी रु धार्मिक होई पारिबोनी। हाँ, कोशिश करने से एक बुरा पापी अच्छा पापी बन सकता है। और निश्चित भाव चेष्टा करने द्वारा जड़े दुष्ट पापी भल पापी ही पारिबो। हाँ, बहुत ही कोशिश और निश्चय करते हुए एक बुरा काम करने वाला पापी एक अच्छा काम करने वाला पापी बन सकता है। और निश्चित भाव जे खराब काम करुवा पापी सी निश्चित भाव चेष्टा द्वारा गोटे उत्तम पापी ही पारिबो। लेकिन अच्छा पापी हो बुरा पापी हो, पापी नरक में ही जाता है। से खराब पापी हो कि भल पापी हो, पापी नरक को ही जीवो। तो फिर पापी धर्मी कैसे बनता है? ताले पापी केते धार्मिक हबो? एक ही मार्ग है, गोटे ही रास्ता, वो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर भरोसा करके। सेटा होची केवल गोटे रास्ता उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टंकर रास्ता। परमेश्वर ने 2000 साल पहले कुमारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में उसी उद्देश्य से भेजा। आउ ए उदाहरण निमंते 2000 वर्ष पूर्वे कुमारी माता मरियम को द्वारा से यीशु ख्रीष्ट को जन्म देले। सचमुच परमेश्वर ने बहुत ही मूल्यवान काम माता मरियम के द्वारा इस संसार में पूरा किया है। और से बहुत मूल्यवान काम कले जोटा कि माता मरियम को द्वारा पूरा कले। अगर परमेश्वर ने माता मरियम के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में नहीं भेजा होता, यदि माता मरियम को द्वारा यदि यीशु ख्रीष्ट को यदि परमेश्वर पठे न थांते तो फिर आज भी हम पापी ही रह जाते। ताले आज हम निश्चित भाव पापी ही रही लेकिन थांते। यीशु का जन्म हुआ किंतु यीशु ख्रीष्ट को जन्म हैला और यीशु हमारे सबके पापों को लेकर क्रूस पर भी चढ़ा और यीशु ख्रीष्ट हमर समस्त अपराध निमंते क्रूस रे मध्ये हत हेले और क्रूस पर यीशु ने हमारे सब पापों का दंड चुकाया और हमर समस्त पापर वेतन यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे देले और उसके द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया है। और ता द्वारा से हमको धार्मिक गणित तो कले। आज हम लोग खुद होकर धर्मी नहीं बने हैं, सेते हमें निज द्वारा में धार्मिक हेइनु। यीशु के बलिदान के द्वारा हमको धर्मी बनाया गया है। सेते यीशु ख्रीष्ट बलि द्वारा हमको धार्मिक करा गला। यहाँ वचन में भी लिखा है कि हम धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। वाक्य मध्ये कहूची से हमको धार्मिक गणित हेबा निमंते उत्थापित हेले। मैंने खाना खाया और मुझे खाना खिलाया, इसमें फर्क है। मु खाद्य खाइली मते खाद्य खुआइले ए भीतर पार्थक्य अछि। मैंने खाना खाया मतलब मैंने खुद के हाथों से खाया, मैं अच्छे से खा सकता हूँ खुद होकर। मु खाद्य खाइली माने निज हाथ रे मु
ଖାଇ ପାରୁଛି ବୋଲି ଖାଇଲି लेकिन मुझे खाना खिलाया इसका मतलब ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ ତାର ଅର୍ଥ मैं खुद नहीं खा सकता। ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇ ପାରୁନି किसने तुम्हें मुझे खाना खिलाया? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ हम खुदों का धर्मी नहीं बन सकते ଆମେ थे। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ हमारे ହେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ पास कोई मार्ग नहीं था। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हमको धर्मी ठहराया गया। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରାଗଲା प्रियो, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ इस संसार में बुरे आदमी को अच्छा बनने का मार्ग मिलेगा, ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲୋକ ହେବାର ରାସ୍ତା ଅଛି लेकिन एक पापी को धर्मी बनने का मार्ग केवल बाइबल में परमेश्वर ने दिया है। କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଇବଲରେ ହିଁ ସେଠି ପାପୀରୁ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ଲେଖା ଅଛି। और वो मार्ग है यीशु मसीह के बलिदान और यीशु के लहू पर विश्वास करके धर्मी ठहरने का ଆଉ मार्ग। ସେଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା आमेन। ଆମେ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି आमेन। ଆମେ तो आखिरी बार में मैं आप सबसे पूछूंगा, आप लोग साथ मिलकर जवाब दीजिए। ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ क्या आप तैयार हैं? ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି यीशु क्यों क्रूस पर मारा गया? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଗଲେ ହଁ ଆମର ପାପ ପାଇଁ फिर एक बार, यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଗଲେ ठीक है, सिर्फ हिंदी में मैं बोलूंगा। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିବି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं या उड़िया में भी जवाब दे सकते हैं। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ठीक है, चलेगा? ओके। यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ा? यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ा? यस। और यीशु क्यों जी उठा? हमें धर्मी ठहराने के लिए। हमें वचन क्या कहता है? यीशु क्यों जिलाया गया? ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ यीशु क्यों जिलाया गया? ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ हमें धर्मी ठहराने के लिए। ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ अच्छा, उड़िया में बोलिए, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ पूछो। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ହଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା और फिर से एक साथ आप उत्तर दे सकते हैं। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ आमेन। ଆମେ तो जब आप घर जाओगे, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ आप जानिए ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने ये काम आपके लिए पूरा किया है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରା କଲେ आज मैं पापी हूँ बोलने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं होती, इसलिए कोई भी बोल सकता है मैं पापी हूँ। ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ लेकिन मैं धर्मी ठहराया गया हूँ ये बोलने के लिए परमेश्वर के वचन पर और यीशु के बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत होती है। ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା लाजर मर गया है बोलने के लिए मार्था और मरियम के पास विश्वास की जरूरत नहीं थी। ଲାଜାର ମରିଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସେଠି ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ लेकिन वो सो रहा है, वो मरा नहीं है, ये बोलने के लिए विश्वास की जरूरत है। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠି ଲାଜାର ଶୋଇଛି ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ आमेन। ଆମେ ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए बोलने के लिए विश्वास की जरूरत है। ଏହି ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି विश्वास के बिना नहीं बोल सकते। ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ କେହି କହିପାରିବେ वैसे ही विश्वास के बिना मैं धर्मी ठहराया गया हूँ नहीं बोल सकते। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛି ଏଟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको आपके सोच पर विश्वास करने से फिर कर वचन पर विश्वास करने के लिए अनुग्रह दे। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଫେରିକି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ताकि आप घर लौटते हुए इस विश्वास के साथ लौट सको कि यीशु के बलिदान ने मुझे धर्मी ठहराया है। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଯିବେ ଆପଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଫେରିକି ଯିବେ ଯେ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ आप सब लोग आज शाम के ईस्टर कंटका का आनंद ले, ये मैं आशा करता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଜିର ଇଷ୍ଟର ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ यहीं तक मैं संदेश दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ମେସେଜ ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ
आमे सबुठु गुरुत्वपूर्ण समय पहुंची अच्छु समस्ते खुशी की हाँ मुझे आपण मान देखुली